ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام لائبہ ہے اور بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اپنی بڑی بہن سے میرا 15 سال کا فرق تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن جس کے نئے نقش بہت تیکھے تھے اور رنگ سانولا تھا، اس کا نام فرزانہ تھا، اور باقی چھوٹی بہنیں خوب گوری چٹی تھیں۔ وہ دونوں جڑواں تھیں، اس لیے ایک جیسے نئے نقش کی حامل تھیں، جیسے جاپانی گڑیا۔ ان کے بال سنہری اور آنکھیں بھوری تھیں، رنگت جیسے کہ دودھ۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا اور اس نعمت کو ہم لوگ پوری زندگی ترستے رہے، اور پھر بھائی کی کمی ہر ایرے غیرے میں ڈھونڈنے لگے۔ میرا باپ جو کہ ایک فیکٹری میں ملازم تھا، اسے گھر کے حالات سے ذرا بھر بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جیسے ایک روبوٹ تھا جو کام کرتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اس کا یہی طرز تھا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں دادی، میری ماں، میرا باپ اور میری بہنیں رہتی تھیں۔ دادی کی کچھ سال پہلے ہی وفات ہو گئی اور اب گھر کی ساری ذمہ داری ماں کے کندھوں پر تھی، جو کہ جلد ہی میری بہنوں نے سنبھالی۔ ایف اے کے بعد میری بڑی بہن نے پاس ہی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد میری جڑواں بہنیں بھی کمانے لگ گئیں۔ انہوں نے بھی پڑھ لکھ کر اسکول میں ملازمت کر لی۔ گھر میں پیسے کی اچھی ریل پیل تھی، لیکن جانے وہ سارے پیسے کہاں چلے جاتے تھے۔ ہم لوگ تو پھر بھی ہر چیز کے لیے ترستے ہی تھے۔ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی ہے اس وقت کی جب ہم لوگ سیالکوٹ سے پنڈی شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ میرے ابو دن بھر قریبی فیکٹری میں کام کرتے اور رات کو تھکے ہارے گھر واپس آ جاتے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، صرف 3 جوان بہنیں تھیں، جن میں 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ان کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور اس سے بڑی بہن کی عمر 30 سال تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ میری بڑی بہنوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ ہماری غربت تھی۔ جو بھی رشتہ آیا کرتا وہ لڑکی دیکھنے کے بہانے ہماری غربت کا مذاق اڑا کر چلا جاتا اور پھر کبھی واپس ہی نہ آتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اماں آخر باجیوں کی کمائی کہاں استعمال کرتی ہیں؟ نہ کھانے کو روٹی ڈھنگ سے ملتی ہے اور نہ ہی پہننے کو اچھے کپڑے۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ میری بہنوں کی شادی ہو تاکہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور مزے مزے کے کھانے کھاؤں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میری ماں جان بوجھ کر میری بہنوں کی شادی نہیں کر رہی، تو کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ بیچاری بھی مجبور ہے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ رشتے دیکھنے آئی، تو اس نے میری سب سے بڑی بہن کو پسند کر لیا۔ رشتہ طے ہو گیا اور پھر جب دن رکھنے کی باری آئی تو وہ عورت انکار کر گئی۔ جانے کیا وجہ تھی، اسے قسمت کی ستم ظریفی کہیں یا پھر ہمارے گھر کی ٹوٹی پھوٹی حالت سے ٹپکتی غربت۔ میری ماں اس غم میں بیمار رہنے لگی اور باپ تو جیسے اس گھر میں بس سونے کے لیے ہی آتا تھا۔ اسے ہماری مجبوریوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے فیکٹری چلا جاتا اور رات کو واپس آ کر سو جاتا۔ ہماری اپنے باپ سے بالکل نہ بنتی تھی۔ کبھی ان سے بات بھی کرنی پڑے تو جھجکتے ہوئے ہی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہم سے ہماری خواہشات پوچھی۔ گھر میں جوان اولاد ہو تو ماں باپ کو پریشانی لگ جاتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیسا باپ تھا جس سے معلوم بھی تھا لیکن وہ انجان بنا رہتا تھا، جیسے ہم اس کی سکی اولاد نہ تھیں۔ میری بڑی بہن بہت ڈپریشن میں جانے لگی تھی۔ اس کی ساری سہیلیوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھے۔ کچھ کے تو بچے بھی تھے۔ جب وہ میری بڑی بہن سے ملنے آتی تو ان کے چہرے پر پھیلی خوشی اور کہہ دیکھ کر شاید میری بہن کا دل بھی چاہتا ہو کہ اس کا بھی ایک گھر بار ہو، لیکن وہ ایسی صابر اور شاکر بندی تھی کہ اس نے کبھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا اور چپ چاپ قسمت کے ساتھ نبھاتی رہی۔ اسی دوران اسے ہڈیوں میں درد ہونے شروع ہو گیا۔ اس سے کمر بھی سیدھی نہ ہوتی اور وہ پورا دن چارپائی پر پڑی رہتی اور درد سے کراہتی رہتی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ماں اسے ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ لے کر گئی، اور وہ کبھی اسے گھر میں ہی کوئی دوا پیس کر دیتی یا کوئی جڑی بوٹی، لیکن اس سے بھی قدرے آرام نہ آیا۔ بڑی بہن کے بیمار ہوتے اتنی مشکل نہ آئی کیونکہ ابھی مجھ سے 2 بڑی بہنیں گھر سنبھالنے والی موجود تھیں۔ کچھ مہینے گزر گئے لیکن اس کا ہڈیوں کا درد ٹھیک نہ ہوا، اور پھر اسی طرح میری جڑواں بہنیں بھی اچانک سے اسی طرح درد میں مبتلا ہو گئی اور چارپائی سے لگ گئی۔ اب میری ماں زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائے۔ اس نے اگلے ہفتے ہی اپنی جمع پونجی اپنے پلوں میں لپیٹی اور قریبی ڈاکٹر کے پاس چلے گئی، جو کہ ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا، اور اس نے ابھی نیا ہی کلینک کھولا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن لوگوں کا علاج کرتا اور لوگ خوشی خوشی گھر واپس جاتے۔ وہاں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ میری بیٹیوں کو ہڈیوں کا درد رہنے لگا ہے، ان کو چیک کرو اور کوئی دوائی دے دو۔ ڈاکٹر نے میری تینوں بہنوں کو بڑی غور سے دیکھا اور پھر جیسے وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں بھی اماں کے ساتھ ہی گئی تھی۔ مجھے وہ ڈاکٹر کہیں سے بھی اچھا نہ لگا۔ عجیب سی نظروں سے وہ مجھے اور میری بہنوں کو گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ماں کو کہا کہ ان کو خواجہ سراؤں کے پاس بھیجو اور ان کے پاس سلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کہ لڑکیوں کو یوں خواجہ سراؤں کے پاس بھیج دیا جاتا۔
पहले तो माँ ने बहुत एतराज़ किया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि इनका इलाज किसी दवाई से नहीं होगा, इन पर किसी का साया है जो ऐसे नहीं उतरेगा, वरना अगर बर वक्त उन्हें ख्वाजा सरा के पास ना भेजा तो ये तमाम उम्र के लिए ऐसी बीमार हो जाएंगी और कभी अपने पाँव पर चल ना सकेंगी, और बेहतर तो ये होगा कि अपने घर में ही ख्वाजा सरा का फेरा लगा लें और फिर सब ठीक होगा। डॉक्टर की ये अनोखी बात सुनकर माँ ने सब्र का घूंट भरा और ख्वाजा सराओं का पता डॉक्टर से लेकर चले गए। अगले दिन ख्वाजा सरा हमारे घर आए और माँ ने उन्हें कमरे में भेजा और उसके कुछ देर बाद मेरी बहनों को भी भेज दिया। मैं पुरतजस्सुस थी कि आखिर कैसे सब ठीक हो जाएगा, तो मैं अलमारी में छुप गई। अलमारी में छुपकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी बहन इस ख्वाजा सरा के पास बैठकर मुस्कुराकर बातें कर रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को करीब से जानते हों। मैंने रात को माँ को बोला भी था कि मुझे ये ख्वाजा सरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन माँ ने नज़रअंदाज किया और कहा, तुम्हें बड़ा पता है, तुम अभी छोटी हो और चुप ही रहो, तुम इन मामलों की बारीकियों को नहीं समझती। असल में मेरी माँ साय जैसी बातों पर बहुत यकीन रखती थी, इसलिए इस डॉक्टर की बातों में आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अगली रात को फिर से 3 ख्वाजा सरा आ गए और मेरी बहनों के कमरे में चले गए। सुबह जब मैं उठी तो ये देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई कि मेरी बहनें इस ख्वाजा सरा की खिदमत कर रही थी। मैं स्कूल जाने से पहले ये मंजर देखकर जाती थी और जब वापस आती तो वो लोग जा चुके होते थे। ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। मैं तब इतनी समझदार नहीं थी, मगर फिर भी मैं इस सब को अच्छा नहीं समझती थी। हैरत तो मुझे अपनी बहनों पर होती थी कि वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद इन बातों पर यकीन कर रही हैं कि ख्वाजा सराओं की खिदमत करने से इनकी हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन मेरी बहनों ने इन ख्वाजा सराओं के पास जाना था। मैं और अम्मा उनको छोड़ने गए। वो 3 ख्वाजा सरा यहाँ से दूर जंगल में अपना खैमा सा बनाए हुए थे, जिसके आसपास सवाए पौधों के कुछ न था। बहुत पुरसकून माहौल, जैसे इस माहौल में सारे दर्द भूल जाते हों। मेरी माँ यहाँ आकर बहुत खुश हुई और फिर अच्छे से छानबीन करके उनसे बात करके घर वापस आ गई। अगले दिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरी माँ ने तीनों बहनों को घर से दूर भेज दिया। उनका कहना यह था कि वो कहीं रहने जा रही हैं। उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई और अब्बू को भी ना बताई। न जाने इनके दिल में कैसा डर था। वो तीनों सुबह जाती और वापस शाम को घर आ जाती। कई दिन इसरार करने के बाद मुझे भी वजह मालूम हो गई और फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि इन ख्वाजा सराओं की खिदमत करने जाती हैं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाएं। 1 हफ्ता गुजर गया और मेरी बहनें ठीक होने लगीं। इनके चेहरे पे खुशी के आसार दिखाई देने लगे और वो रंजीदा रहने की बजाय खुश दिखाई देने लगी थी। इनको खुश और मुतमईन देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने ठान लिया कि मैं भी आज इनके पीछे ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी माँ इस दिन घर नहीं थी, उसे कहीं फौतगी पर जाना था। जब मेरी बहनें घर से निकलीं तो इनसे कुछ फासले पर मैं भी चलती रही। वो एक जंगल की तरफ जाने लगीं और फिर तीनों एक बड़े खैमे में दाखिल हो गईं, जिसका रंग नीला था और इसके आसपास बहुत से परिंदे पौधों पर बैठे चहक रहे थे। वहाँ हवा में ऐसी खुशबू फैली हुई थी कि मैं चौंक गई। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी बहनों का पता करना है। मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और खैमे के एक सुराख से अंदर झांका और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बहनें और वो ख्वाजा सरा अंदर मौजूद न थे। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, अंदर देखा, हर जगह देख लिया, लेकिन वो अंदर मौजूद न थे। खैमे के अंदर भी देख आई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मुझे अब वहाँ खड़े होने से डर लगने लगा। मैं वहाँ से भागी और घर वापस आ गई। मुझे लगने लगा कि मेरी बहनें अब कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो उस दिन भी वापस आईं और बहुत खुश थीं। मैंने बातों बातों में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खैमे में उनकी खिदमत करती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी न था। जाने क्यों, मगर मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरी बहनें सच कह रही हैं। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में मैंने उसी डॉक्टर को देखा जिसने अम्मा को मशवरा दिया था। वो इन 3 ख्वाजा सराओं के साथ एक तरफ को जा रहा था। मुझे वो डॉक्टर पहले ही अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब सोचा कि इस डॉक्टर का पीछा करके मालूम तो करूं कि इसका इन ख्वाजा सराओं से क्या ताल्लुक है। मैं उनके पीछे पीछे चलती रही तो देखा कि वो सब डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हो गए हैं। मैं घर से अभी थोड़ी दूर ही थी कि देखा कि मेरी बहनें भी घर से निकलकर इस क्लिनिक में चले गई हैं। मुझे बहुत अजीब लगा तो फौरन घर आकर अम्मा को बताया कि बाजियाँ कहाँ गई हैं। तो अम्मा को जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी। वो आराम से बैठी रही और कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है, वो मुझे बता कर गई हैं। तू क्यों अपनी बहनों के पीछे पड़ गई है? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि जब से उन्होंने इन ख्वाजा सराओं की खिदमत करनी शुरू की है, इनकी हड्डियों का दर्द कम होने लगा है। अगले दिन मैंने स्कूल से छुट्टी करके अपनी बहनों का पीछा किया, मगर उन्हें पता चल गया तो मुझे डांट कर भगा दिया। मगर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने एक बार फिर से
अपनी बहनों की सच्चाई जानना चाही और मैं अगले दिन फिर इसी तरह उनके पीछे पीछे ही रही। इस बार उनको शायद शक हो गया था कि उनका पीछा हो रहा है, इसलिए वो बहुत मुहतात रही और कई बार पीछे मुड़ मुड़ कर भी देखती रही। लेकिन मैं रास्ते में दरख्तों की ओट में छुपी रही। जब मेरी बहनें वहां खेमे के पास पहुंच गईं तो वहां दाखिल होने से पहले आसपास नजर दौड़ाई कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उनको यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो अंदर दाखिल हो गई। मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए और दरवाजे की ओर से झांका तो फिर वैसा ही मंजर था जो मैंने कल देखा था। वहां कोई न था। मेरी हैरानी में इजाफा हो गया और मैं कदरे परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है। आखिर मेरी बहनें कहाँ गायब हो जाती हैं। मैं खेमे में दाखिल हुई। वहां 2 बिस्तर लगे हुए थे, एक अलमारी थी और एक मेज जिस पर कुछ खाने की चीजें पड़ी थी, और दूसरी तरफ बड़ा सा संदूक पड़ा था। मैंने संदूक खोलने की कोशिश की लेकिन इसका दरवाज़ा बहुत भारी था जिसे उठाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने संदूक का ढक्कन खोला तो मैं डर के मारे पीछे को हट गई। वहाँ अजीब किस्म के ढांचे पड़े हुए थे जैसे मरे हुए जानवरों के हों। साथ ही कुछ लफाफे थे जिनमें कुछ रखा था। मैं इसकी खुशबू इतनी तेज थी कि नतनों में घुसने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहाँ गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरी बहनें और मेरी माँ मेरे सरहाने खड़ी थी। मुझे बुखार हो गया था और मेरे माथे पर पानी की ठंडी पट्टियां कर रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोली और मुझे वो सब याद आने लगा। मैंने अपनी बहनों से पूछने के लिए मुंह खोला तो बड़ी बहन ने मेरा हाथ दबा दिया। मैंने इसका इशारा समझा और चुप कर गई। जब माँ बाहर किसी काम से गई तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गई थी और मुझे घर ले आई। मैंने बहुत बार पूछा कि आप सब कहाँ गायब थी, तो उन्होंने मुझ पे पागल होने का इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। हम इधर ही कमरे में थी, भला एक कमरे के अलावा हम कहाँ गायब हो सकती हैं। वहाँ कोई और जगह भी न थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ मुझे अपनी आंखों पर यकीन था कि जो देखा है वो सच था, लेकिन दूसरी तरफ अक्ल इस बात को मानने से इनकारी थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वहाँ कोई मौजूद ही ना हो? क्या मेरे साथ कोई मसला चल रहा है या मैं ज़्यादा सोचने लग गई हूँ? इस पूरी रात मैं चुपचाप छत को घूरती रही और मैंने ये समझ लिया कि मेरी बहनें ठीक कह रही हैं और शायद मैं कुछ ज़्यादा गलत सोचने लग गई हूँ। इसके अगले दिनों ही मेरी बहनों का रवैया मेरे साथ अच्छा न रहा और वो मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश करती रही। मैंने इसके बाद कभी उनकी जासूसी न की और थक हार कर किस्मत पर छोड़ दिया कि किस्मत ही वक्त पर सब सच सामने ले आएगी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। मेरी बहनों का दर्द कम हो गया, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैंने अम्मा से बात की कि अब तो बहनों को मत भेजा करो, अब वो ठीक हो गई हैं। माँ को भी मेरी बात अच्छी लगी तो अम्मा ने 2 दिन तक इनको वहाँ न भेजा, तो अगले ही दिन इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। सुबह जब मैं उठी तो अम्मा ने बताया कि तीनों बहनों को फिर से हड्डियों में दर्द होने लग गया है। अब तुम ही घर के काम करो। इस दिन छुट्टी करके मैंने सारे घर के काम किए। मुझे तो कहीं से न लगा कि बहनों को कहीं दर्द है। वो तीनों बेड पर आराम से लेटी बातें करती रही। अगले दिन भी वो यही कहने लगी कि अम्मा हमारी हड्डियों में बहुत दर्द है। मजबूरन माँ ने इनको इजाज़त दे दी। बहनों की आपस में बातचीत से भी मुझे कुछ अंदाज़ा न हुआ कि वो आपस में क्या बात करती हैं। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वो चुप हो जाती और मुझे कहती कि तुम छोटी हो, हमारी बातें मत सुना करो। इन्हीं दिनों रिश्ते वाली ने अम्मा को कहा कि तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए मैं अच्छे रिश्ते लाऊंगी। मैंने देखा कि रिश्ते की बात पर मेरी बहनों के चेहरे खिल गए, मगर असल हैरत मुझे अम्मी पर हुई, जो दूसरे कमरे में ले जाकर कहने लगी, अभी मेरी बेटियों को हड्डियों के दर्द का मसला है, अभी मत लाना कोई रिश्ता, जब लाना हुआ तो मैं खुद कह दूंगी। 1 हफ्ते के बाद मेरी जुड़वा बहनें गायब हो गईं और वापस ही ना आई। पूरी रात घर में परेशानी रही और कोहराम मच गया। बाप को अब फिक्र होने लगी। आखिर वो बेटियां थी, गैरत का मामला था, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर वो पूरी रात जगह जगह पता करवाते रहे। इन ख्वाजा सराओं के खेमे तक छान लिए, लेकिन वहां से कुछ ना मिला। मेरी बड़ी बहन ने सबको यही बताया कि वो दोनों बाजार से कुछ सामान लेने गई थी और कह रही थी कि वो वापस आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई। 1 दिन हो गया और मेरी बहनें वापस न मिली। पुलिस में अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वो कहीं से बरामद न हुई। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और इसके कुछ ही दिन बाद मेरी बड़ी बहन और घर से कुछ ज़रूरी सामान गायब हो गया। अब तो जैसे घर में मैयत हो गई थी। रो रो कर मेरी माँ ने मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, लेकिन मोहल्ले की औरतें यही कहती रहीं कि तुम्हारा अपना कसूर है, तुम्हारी अपनी बेटियों का कसूर नहीं है, तुमने उनको क्यों इधर भेजा। बात खुलते खुलते खुली तो बाप को भी खबर हुई कि बेटियां तो इन ख्वाजा सराओं के पास जाती रही हैं। अब मुझे लेकर सब वहाँ खेमे के पास पहुँचे तो वहाँ कोई भी खेमा सिरे से मौजूद ही ना था। ऐसे साफ जगह थी जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मेरे साथ साथ मेरी माँ भी सुन खड़ी हो गई, क्योंकि वो भी तो इस जगह आई थी और अपनी आंखों से देखा था सब। फिर अभी वहाँ पर कुछ क्यों नहीं था। फिर भाग दौड़ में मुझे इस डॉक्टर का ख्याल आया तो माँ को बताया।
जिस ने बहनों को इन ख्वाजा सराओं के पास भेजा था। सारे फसाद की जड़ वही था, लेकिन इसके क्लिनिक को भी ताला लगा था। हमने आस पड़ोस से मालूम किया तो पता चला कि 2 दिन पहले वो डॉक्टर क्लिनिक बंद करके जा चुका था। कहाँ गया था और कितने दिनों के लिए गया था, किसी को मालूम नहीं था। गांव वालों ने यही कहा कि शायद वो अगवाकारों का ग्रोह था, जो लड़कियों को मुख्तलिफ हीले बहानों से उकसाते और अपने साथ ले जाते और फिर बेच देते होंगे। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन बेसुध। सबको मालूम हो गया था कि मेरी बहनें गायब हैं। बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिली। थक हार कर और लोगों की बातें सुनकर हमने अपना घर बेच दिया और दूसरे शहर आ गए। यहाँ आकर हम जिंदगी नए सिरे से जीने लगे। अब्बा को अपनी जिम्मेदारियों का अब एहसास हुआ था। उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिला ले दिया। मैं पढ़ने जाने लगी, मगर अपनी बहनों को ना भूल सकी। काफ़ी साल गुजर गए, मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, मगर बहनों की कसक दिल में ही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या वाकई मेरी बहनों को हड्डियों का दर्द था, या फिर वो डॉक्टर झूठा था। वो ख्वाजा सरा कौन थे और कहाँ गायब हो गए? ये सवालात चैन नहीं लेने देते थे, और ना ही इतने सालों में इन सवालों का जवाब मिला था। मैं इस शहर में आने से पहले कई बार इस जगह की जहाँ मेरी बहनें जाती थी, मगर वहाँ कोई भी न था। यहाँ तक कि मेरे अलावा मेरे माँ बाप भी वक्तन फ़वक्तन पिछले शहर का चक्कर लगाते रहते थे, सिर्फ इस आस पर कि शायद किसी दिन उनको अपनी कोई बेटी नजर आ जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ था कभी। इस शहर में आए हमें कई साल हो गए थे। जिंदगी के लगाए जख्म मुंदमिल तो न हुए, लेकिन अब घर वालों को सब्र आ गया था। अब हम सुकून से रहने लगे थे। मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, और इस तरह मुझे घर के हालात को ज़्यादा सोचने का वक्त न मिलता। मेरी माँ को गुर्दों का मसला हो गया, और अब वो चारपाई पर ही रहने लगी। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले घर का सारा काम करके जाती, और फिर घर आकर भी खाना वगैरह बनाती। घर के हालात इतने अच्छे नहीं रहे थे। हमारे रिश्तेदार जो पहले पहल हालचाल पूछ लिया करते थे, अब उन्होंने भी कभी ये ना पूछा कि हम लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे छोटी खाला, जो मुझे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी और हमारे घर बार बार रिश्ता लेकर आया करती थी, उसने इस वाक़े के बाद हमसे हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर लिया। उसे लगता था कि मेरी बहनों का किरदार ठीक नहीं था, और वो अगवा नहीं हुई थी, बल्कि वो घर से भागी थी। इस बात पे मेरा कलेजा कट जाता था, क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती थी। मुझे यही लगता था कि इस डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी बहनों को कहीं गायब कर दिया था। इसी दौरान यूनिवर्सिटी से एक लड़के ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मैं उसे कई बार इशारों में बता चुकी थी कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन वो अटल रहा। वो रिश्ता लेकर हमारे घर आया तो मेरे घर वालों की तरफ से कोई मसला नहीं था, लेकिन इसकी बहनों और भाभीयों ने बहुत बड़ा मसला बना दिया। उनका कहना यही था कि न घर बार अच्छा है, न जाने क्यों उन्होंने अपना पिछला शहर भी छोड़ दिया, और ना ही इनका कोई रिश्तेदार है, तो हम किस पनाह पर इनसे रिश्ते की बात कर लें। लेकिन हामिद बहुत ज़िद्दी साबित हुआ। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और घर वालों को मना ही लिया। यूनिवर्सिटी से छुट्टियां चल रही थीं जब मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मैं, हामिद और उसकी भाभी शॉपिंग करने जाने लगे। मेरी तरफ से अम्मी इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मुझे अजीब सी टेंशन और परेशानी होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्यों इतनी बेचैनी है, किस बात की फिक्र है। हालांकि मेरी पसंद की शादी हो रही थी। मैं और हामिद क्लास फेलो थे, और ये शादी हमारी बाहमी रजामंदी से हो रही थी, मगर फिर भी एक खलश से दिल को सता रही थी। जाने क्या बात थी जो मुसलसल मेरे सुकून को बर्बाद कर रही थी। मुझे हामिद ने फ़ोन करके शॉपिंग के लिए कहा था, और मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा था। कुछ दिन इसी बेचैनी में गुजर गए तो मुझे पता चला कि मेरी उदासी की असल वजह क्या थी। वजह मेरी बहनें थीं, जो आज बस मेरी यादों में रह गई थी। अपनी शादी के वक्त मुझे उनकी याद आ रही थी, और मैं जानती थी कि अम्मा को भी उनकी याद आ रही होगी। मेरी माँ को मैंने कई बार छुप छुप कर रोते देखा। बहनें भूलने वाली चीज़ तो नहीं होती। खैर, मैंने खुद को संभाला कि अब मेरी शादी हो रही है तो मुझे खुशदिली से सारी तैयारियां करनी होंगी। अम्मा बज़ाहिर इस शादी पर रजामंद नहीं थी, मगर मेरे लिए उन्होंने हाँ कर दी थी, क्योंकि वो मामू की तरफ से उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाएंगे। मगर उनकी तरफ से ऐसी कोई बात आज तक नहीं हुई थी। इसलिए हामिद मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस था, जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी। हामिद के साथ एक दिन मैं शॉपिंग पर गई तो उस दिन अचानक मैंने अपनी बड़ी बहन को शॉपिंग मॉल में देखा, जहाँ वो एक मर्द के साथ शॉपिंग कर रही थी, और उसके साथ एक बच्चा भी था। वो बहुत खुश थी और हंसते हुए इस मर्द से कुछ बात कर रही थी। मैंने अपनी बहन को पहचान लिया और दौड़कर उसके गले जा लगी। वो भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो यूं जाहिर करने लगी जैसे वो मुझे जानती ही ना थी। उसने मुझे अपने से दूर किया और दूसरी तरफ को जाने लगी। मैंने हिम्मत न हारी और एक बार फिर अपनी बहन को आवाज़ दी। अब की बार उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे।
इस दिन शॉपिंग मॉल में हम लोग काफ़ी देर खड़े रोते ही रहे। मैंने उससे सारी बात पूछी तो उसने जो कहा वो सुनकर मैं खड़ी की खड़ी रह गई। उसने कहा कि हमारी बाकी बहनें भी ठीक हैं और वो भी अपने घर में खुश हैं। जो उसने मुझे बताया वो ये था कि उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। उनको किसी ने अगवा नहीं किया था। ना तो उनको हड्डियों का दर्द रहता था और ना ही उनको कोई और बीमारी थी। वो नाटक करती थी और ये ख्वाजा सरा नहीं थे। ये वो लड़के थे जो उनसे मोहब्बत करते थे और उन्होंने अपने दोस्त को साथ मिलाकर ये ड्रामा रचाया। वो दोस्त डॉक्टर बन गया और बाकी सब ये कहानी चलती रही। मेरी बहन ने मुझे इस राज के बारे में भी बता दिया जिसके बारे में मैं आज तक सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खैमे में कोई ना हो। तो मेरी बहन कहने लगी कि इस खैमे के नीचे एक सुरंग बनाई हुई थी जो एक घर में जाकर खुलती थी और हम लोग वहाँ रहा करते थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहनों ने बहुत पहले ही निकाह कर लिया था और अपने शोहरों के साथ रहने को वो सब ड्रामा किया था। ये सब जानकर मैं दंग रह गई। मुझे बहुत दुख लगा था, लेकिन जब अब सब कुछ ठीक था तो मैं भी चुपचाप उनकी खुशी में शरीक हो गई। मगर फिर भी कसक सी थी कि इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर कोई तो वजह होगी। मेरी बहन कहने लगी मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। मेरी तरफ की कहानी सुनोगी तो मैं तुम्हें हक पर लगूंगी। फिर मेरी बहन अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं सबसे बड़ी बेटी थी तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां भी मुझ पर ही आईं। जब बचपन में हमें कोई चीज़ ना मिलती तो मैं यही ख्वाहिश करती कि जल्दी से बड़ी हो जाऊं और फिर जॉब करके खुद की ख्वाहिशात को पूरा करूं। मैंने अपनी बाकी बहनों के लिए अपनी ख्वाहिशात तक को मार दिया और अपनी ज़रूरियात को भी साइड पर रखा। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, बल्कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे थी। जब मैं बड़ी हुई तो कमाने लगी और माँ मेरे सदके वारी जाती। मैं बहुत खुश होती कि माँ मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे मेरे पैसों से मोहब्बत थी जो कि मैं कमा कर उसकी हथेली पर रख देती तो वो खुश हो जाती, वरना वो अक्सर ताने से देती रहती। जब बाकी बहनें भी जॉब करने लगी तो यूँ मानो जैसे वारे नियारे हो गए, लेकिन फिर भी माँ ने हमारा न सोचा और हर वक्त अपने भाइयों और उनके बच्चों पर लुटाती रही। हमारी खुशी पर उनकी खुशी को मुकद्दम रखा। बचपन में जो खिलौना मुझे पसंद होता था वो मुझसे छीनकर मामू के बच्चों को दे दिया जाता ताकि वो खुश रहें। घर में इतना पैसा आने के बाद भी माँ की हवस न मची तो उसने यही सोचा कि वो हमारी शादी न करवाए ताकि इसको बर वक्त पैसा मिलता रहे और उसकी ज़रूरियात पूरी होती रहें। मैंने बहुत साल पहले घर में माँ से जिक्र किया था कि एक लड़का मुझे पसंद करता है और वो आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन उस रात माँ ने मुझे बहुत मारा और कहा आइंदा इस लड़के का जिक्र तुम्हारे मुंह से न सुनूं। मैं चुप कर गई और इसका नाम कभी जुबान पर न लाई। मुझसे छोटी दोनों बहनें भी ये बात जानती थीं, लेकिन वो खुद लाचार थीं, कुछ नहीं कर सकती थी। हमारी उम्रें गुजरती रहीं मगर अम्मा ने हमारी शादी न की। इसलिए मुझे अहमद ने कहा कि हम एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान पर अमल करके हम शादी कर लेंगे। घर वालों को यही लगेगा कि तुम अगवा हुई हो। फिर उसने अपने साथ अपने एक दोस्त को शामिल किया जो राजदार बना और उसने डॉक्टर बनने का नाटक रचाया। बाकी बहनों ने भी इसमें रजामंदी दी और फिर इसी तरह करते करते हमने प्लान पर अमल करके शादी कर ली। मैंने बहुत कोशिश की थी कि ऐसा ना करूं, लेकिन बेबस थी और फिर आखिरकार घर से निकलते हुए मैं कई देर माँ के कमरे के सामने रोती रही, लेकिन मैं जानती थी कि माँ कभी नहीं मानेंगी। जब मैंने शादी कर ली तो अहमद नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी महसूस ना होने दिया कि मैंने घर से भागकर शादी की है। हमने इतनी मेहनत की कि अब हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं और मैं उनकी बिजनेस पार्टनर भी हूँ। बाकी दो बहनें भी अपने घर बेहद खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। मेरी बहन ने अपनी कहानी सुनाई और फिर वो चुप कर गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सब में मेरी माँ का कसूर है, लेकिन मेरी बहनों ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने उससे ये बात की और उसने कहा कि अब वो शर्मिंदा है और माँ से मिलना भी चाहती है। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मैंने माँ को सारी बात बताई। उनका हमारे सदमे बुरा हाल था, जैसे उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है और उनकी बेटियां जिंदा हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें अब माफ़ कर दें ताकि वो ज़मीर के बोझ तले दब न जाएं। मेरी माँ ने मुझसे भी मुंह फेर लिया और उसने कई दिन मुझसे बात न की। मैं अपनी बहनों से मुसलसल राब्ते में थी। मैंने उनसे कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, माँ किसी से बात नहीं कर रही, बेहतर होगा कि वो अभी घर ना आए। अगले ही दिन माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे कहने लगी मैंने कभी लालच नहीं किया कि तुम लोगों की कमाई से ऐशो इशरत की ज़िंदगी जियो। मैं हमेशा यही चाहा कि तुम्हारा बाप, जो कि बाप होकर भी बाप नहीं है, उससे बेहतर शौहर तुम लोगों को नसीब हो। इसलिए मैंने तुम्हारे मामू के बड़े बेटों को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश की थी। मुझे मालूम था कि जैसे ही वो दुबई से आएंगे मैं तुम्हारी मुमानी से बात कर लूँगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा भाई अपने बेटों के आते ही मेरी बेटियों का हाथ मांग लेगा, लेकिन उनके आने से पहले ही ये सब हो गया और तुम्हारी बहनें मुझे कसूरवार ठहराती रहीं। मुझे दुख है कि मेरी अपनी बेटियां मुझे इस कदर लालची समझती रहीं। उन्हें लगता रहा कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ इनकी कमाई बचाती रही और इनका जहेज बनाती रही। उनके लिए अच्छा बर्थ चाहती थी, इसीलिए उनकी शादियों में ताख़ीर हो रही थी और वो मुझे लालची समझती हैं।
जैसे उनकी कमाई मैंने खा ली हो। ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। मैंने उनको जोर से गले लगा लिया और कहा, अम्मी मैं जानती हूँ दुनिया में कोई वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, और आप भी नहीं थी, लेकिन कभी कभी औलाद की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। आपकी बेटियां अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी और वक्त पर, मगर बेवजह की ताखीर ने उनको ये गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इनको माफ़ कर दें। अम्मी ने मेरी बहनों को घर आने की इजाज़त दे दी थी और इससे अगले दिन मेरी मेहंदी थी। मैं बहुत खुश थी और मेरे सारे गिले शिकवे मिट गए थे कि मेरी बहनें मेरी शादी पर मौजूद न होंगी। अब सब मौजूद थे। अब मुझे लग रहा था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन हैं। अब सब अच्छा हो गया। मेरी बहनें मेरी माँ से माफ़ी मांगती रहीं और मेरी माँ उनसे। ज़िंदगी यही है शायद, पल में तोशा पल में माशा, 100 रूप बदलती है। मैंने अपनी माँ को अपनी बहनों के गले लगा दिया तो खुशी खुशी अपनी मेहंदी की तैयारी करने लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब सब ठीक होगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।